because social media is very impactful. Few people, it's very distracting. I'm most curious about your personal interview. Pressurized me that time was कि you are a single child. And how was your experience going to Mauritius? मेरा वाईपी मॉरिशस आया था. कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कुछ चीज करते वक्त. Want to know your routine? घर पे आने के बाद लिटरली एनर्जी नहीं बचती है कुछ और चीजें करने की, बट यू नो यू स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज. Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav. Today on Defense Roger, we have someone who is all-rounder, someone who defines dedication, discipline and determination. She is CDS OTA recommended candidate who achieved success in her first attempt and her journey is inspiring as it gets. A karate champion, a skilled horse rider, and a proud PM banner recipient for being the part of Best Directorate at RDC Parade. She is being All India Best Cadet Rank 2. She has also represented India in Youth Exchange Program Mauritius through NCC. Now, while pursuing advocacy, she is also using her influence to inspire youth towards the life of purpose and patriotism. From parade ground to SSP Bodrum, her journey reflects what it truly means to be a achiever with a soldier's spirit. Let's welcome Shrishti to our platform. And one request to all the viewers, if you gain any sort of value from this channel, make sure you hit the subscribe button. It helps us to reach to better people to create better content. Without any further delay, let's get back to the video. Hi Shrishti, welcome to हेलो the मैम. platform. And थैंक यू सो मच. many congratulations on your recommendation. I don't know, we are just not going to talk about SSB, but there are so many things. And I personally felt so good knowing about you and recording this video with you. So thank you so much for joining me for this video. थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर टुडे. आई एम सो एक्साइटेड. लेट्स गेट स्टार्टेड. I've seen Shrishti, many of your videos before, so being a part of this today, I am very happy. that is so sweet of you. Shrishti, there are so many things which I already know about you, but I want to know it from you. Karate champion, you are into NCC. वहाँ पे भी आपने YP Mauritius आप गए थे, representing India. Then All India Best Cadet. NCC का तो आपने मेरे को लगता है you have utilized the best of NCC. Apart from that, also you also pursue you are also pursuing advocacy and you are also doing horse riding right now. तो मुझे सब चीज़ों के बारे में जानना है एंड हाउ कम यू एंडेड अप ट्राइंग फॉर फोर्सेस बिकॉज आई नो दीज ऑल थिंग्स आर सम वे मोटिवेशनल टू दी फोर्सेस बट एक पर्सनल रीजन भी होता है जब हम ऐसा अनकन्वेंशनल पाथ चूज करते हैं सो हाउ डिड यू चूज व्हेन डिड यू फाइनली डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस फोर्सेस Okay, so I completed my graduation in BCom and after that I pursued my LLB. तो ग्रेजुएशन जब खत्म होने वाला था मेरा, सो इन लास्ट ईयर, सेकेंड एंड लास्ट ईयर वाज लॉकडाउन. सो दैट इज व्हेन आई केम टू नो अबाउट CDS एग्जाम. So I went on YouTube, I searched things about CDS, and that is when I got to know that you can join the army as an officer, and this is the process. There are different entries. So that is when I thought ki this is something that I want to do because I'm an adventure enthusiast. I just cannot do a 9 to 5 corporate job. So when I got to know about this entry and the things related to it, I was like, this is something I want to do. And that is the reason I decided to join NCC so as to get an idea of how the military life is. एक थोड़ा idea मिल जाए कि कैसे होता है, क्या होता है, if I'm ready or not ready. So that is when after my graduation I decided to join NCC. तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद इट ओनली एक्टेड एज अ कंफर्मेशन टू वॉट एवर आई हैड डिसाइडेड. एनसीसी ज्वाइन करने के बाद माई आई मीन द होराइजन एक्सपैंडेड. आई गॉट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी ऑफिसर्स. उनके बारे में जाना, उनसे जाना कैसे है, क्या है. एंड देन आफ्टर हैविंग टॉक्स विद देम, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि इंडियन आर्मी इज, आई थिंक आई एम मेड फॉर, या फिर यही मुझे ज्वाइन करनी है, यही मुझे करना है. Because every day you learn something new there. Right. It is challenging and at the same time it is going to push you in every aspect and you become a better version of yourself. So Right. that is what the forces is. And same happens in NCC also. तो फिर ये रहा है प्रोसेस पूरा की how I decided that I want to join the Indian Armed Forces. All right. And then finally, on your first attempt only, you got the recommendation. We'll talk about it. But in terms of sports and NCC, girls are very spectacle. Not every girl prefer having active lifestyle.
तो right. जनरली ये रहता है कि ठीक है, विल डू गुड इन स्टडीज, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड एनसीसी, आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव पर्सनली परस्यूड इट. So what are the factors you really admire about pursuing sports activity in on a regular basis? Also your experience in NCC. Okay. I started mainly karate. I've played many sports. So I've played karate, handball, basketball, throw ball in my school times. And karate is something which is still a part of me and which will remain a part of my journey. So I started karate when I was in my fourth grade. My mother motivated me to join karate from the perspective that girls should know how to defend themselves. That is the need of today's time, I feel. तो मेरी मॉम ने ये दिमाग में रख के शी मोटिवेटेड मी, आई जॉइंड कराटे. कराटे ज्वाइन करने के साथ साथ उसके बाद स्कूल में आई ऑप्टेड फॉर हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल ऑल्सो. तो इसमें स्कूल टीचर्स का भी एक बहुत मेजर रोल था. व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग दीज स्पोर्ट्स आई रियलाइज कि मेरा फिजिकल फिटनेस, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स, उसमें साथ हाउ टू वर्क इन अ टीम, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर गेटिंग पॉलिश्ड, या फिर आई वाज डेवलपिंग देम being a part of sports. So sports is not just कि तुम्हें भागना है या physical fitness. It is much more than that. It teaches you how to work in a team, organizing, decision making. तो ये सब चीजें तुम रियल टाइम में जब भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है. So that is what sports taught me. I carried all of these things with me in NCC as well. So NCC में how I personally think that sports benefited me in NCC was how to work in a team. So everything in NCC is a group activity. You have to work with your squad. You have to work with your teammates. Buddies के साथ तुम्हें चीजें करनी है. सबको साथ लेके चलना है. किसी को पीछे नहीं छोड़ना है. So this is how पहले से ही ये सब चीजें सीखी हुई है. हाउ टू एडजस्ट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट Right. बैकग्राउंड्स. तो उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ अडेप्ट करना एंड देन कमिंग टू अ कॉमन कंक्लूजन जब आपका गोल एक है. तो दैट इज हाउ एनसीसी एंड स्पोर्ट्स वेंट हैंड इन हैंड. उसके बाद एनसीसी में आने के बाद देयर आर मेनी थिंग्स कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली वेर आई कुड डेवलप माई सेल्फ. आई कुड वर्क ऑन स्किल्स विच आई फील इससे पहले मेरे में थी बट आई कुड नॉट एक्चुअली मेक आउट कि ये मेरे अंदर है. तो एनसीसी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दी and then I made the best possible use of them, and yeah, that has helped me a lot. NCC has helped me a lot. And how was your experience going to Mauritius? Because Yeah. एक एनसीसी ऐसी भी अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे कैडेट्स फॉरेन कंट्रीज विजिट करते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा गया? मेरा वाईपी मॉरिशस आया था. सो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड आई वाज वेरी हैप्पी एंड दैट वाज द लास्ट डेलीगेशन. तो आरडीसी 2024 में जो कैडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें से सबसे लास्ट डेलीगेशन जो आया वाईपी का वाज वाईपी मॉरिशस. बहुत अनएक्सपेक्टेड था बट जब वो आया उसके बाद आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मॉरिशियस इज अ कंट्री जिसमें बहुत सारे यू विल फाइंड इंडियन ओरिजिन पीपल जो इंडिया से उधर migrants गए थे and then they settled there. So staying away from your country, still close to your country. We have large number of Hindi speaking people there, Bhojpuri, Tamil, इतने सब है. So when we went there, we felt like we are in India. We are a part of India. But there, उधर जाने के बाद, one thing that I realized was there are people from different cultures. So there are Indo-French, there are Indo-African, and then proper Indians there, and then Mauritians. All of them staying in harmony and they respect each other. और उनका जो ये था एनवायरनमेंट था दैट वाज वेरी फ्रेंडली. आई मीन जब हम लोग उधर गए तो द हॉस्पिटैलिटी वाज स्पेक्टेकुलर. मतलब बहुत ज्यादा दे वर सो जॉयफुल एंड चीयरफुल पीपल टू इंटरैक्ट विद एंड दे वर सो हैप्पी टू सी कि इंडिया से लोग इधर आए हैं. दे फील कि हम उनके अपने हैं और है भी. तो उस हिसाब से पूरा एनवायरनमेंट था. उधर जाने के बाद apart from the cultural and ये exchanges, we also got a chance to interact with the acting high commissioner of Mauritius there. उसके बाद the Ministry of Sports के जो minister थे Mauritius के, we got to interact with him. So there we had a brief discussion about how NCC works in India because NCC is a very large uniform youth volunteer organizations. So you don't get to see that in other countries. So there they have directly their forces, but here यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है इट इज वॉलंटियर एंड इट इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ था उधर.
उसके Okay. बाद जो हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर थी उनके साथ कुछ इंसाइटफुल बातें हुई थी। ओवरऑल उधर जाने के बाद आई थिंक एक बहुत ज्यादा अच्छा हमें प्लेटफॉर्म भी मिला। वी कुड बी पार्ट ऑफ द मॉरिशन इंडिपेंडेंस डे एंड रिप्रेजेंट इंडिया at a brilliant in a brilliant way there. Okay. Yeah. Yes. Shrishti, now we'll talk about written because some way or the other, the first stepping stone is to clear the CDS written, and CDS is conducted by UPSC. So it has its own challenges, and it was your first attempt, and you managed to clear your written. So I really want to know what was your strategy. How did you manage to know your strength and weaknesses? कि GS को इतना time देना चाहिए and English को इतना, and therefore you will be able to clear the written. So what was your strategy? So first of all, ma'am, I cleared CDS in April 2024. So that was my first attempt which got cleared. उससे पहले when I attempted for written CDS के through तो मेरा clear नहीं हुआ था. So that I'll be better able to tell you the difference between the first and the second strategy which worked for me. So No. first initial level पे I started with my self study only. तो जब मैंने ये किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। ऐसे था कि पूरा सिलेबस है, ये सब कुछ पढ़ना है। आई डिड नॉट मेक अ स्ट्रेटेजी एज टू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई शुड फोकस ऑन। किस हिसाब से पीवाईक्यू उसको देख के उसको एनालाइज करके थोड़ा उस टॉपिक्स को ज्यादा करना, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट्स वर कंप्लीटली की पढ़ाई करनी है, बुक्स लाए एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। देयर वाज नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी। In Okay. my attempt which got cleared, I did join a coaching here. So उधर होता था, I was able to understand better because in 11th and 12th I opted for commerce. तो मेरा 10th के बाद science से पूरा ही मेरा connection छूट गया था। तो it was difficult for me again to study science और ये सब चीजें, मतलब वो memorize करना and also I needed a coaching for that. So that is where I joined one. उसके बाद जो initial मेरे level पे मैंने किया था इस attempt में, that was कि I solved many PYQs, many PYQs. उसके बाद I used to analyze the question paper कि इस question paper में कौन सा ऐसा section है जिसमें I'm able to consistently score better, और Okay. ऐसे कौन से sections है जिसमें I was not able to improve my performance या फिर marks उस हिसाब से। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बताती हूँ, व्हाट आई डिड वाज आई सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। उसके बाद मैंने सेक्शंस निकाले कि इसमें आई एम एबल टू स्कोर 10 में से 9, आई एम एबल टू स्कोर 8, आई एम एबल टू स्कोर, सो दैट इज अ फेयरली गुड स्कोर। कौन से ऐसे सेक्शंस थे जिसमें कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है कि PQRS वाले जो थे रीऑर्डरिंग, उसमें वक्त ज्यादा जा रहा है तो कुछ छूट रहे थे, ऐसे कुछ अगर हो रहा है तो मैंने उनका ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। वो फर्स्ट थिंग किया मैंने। सेम जीके के लिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, पॉलिटी, आई थिंक बिकॉज मैं कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट था, सो आई वाज एबल टू स्कोर वेल इन पॉलिटी। उसके बाद करंट अफेयर्स वीडियोस देख के मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के आई वाज एबल टू करंट अफेयर्स एज वेल। ज्योग्राफी और साइंस इनका मुझे थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ रहा था। आई रियलाइज कि मुझे ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत है, उस हिसाब से जीके का मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाया था। एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, मल्टीपल रिविजन्स कोचिंग में अटेंडेड, आई मेड माय कंसेप्ट्स वेरी क्लियर, ताकि अगर कोई चीज डायरेक्टली भी नहीं पता हो तो वो कंसेप्ट के बेसिस पे, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एटलीस्ट आई एम एबल टू ट्राई। Right. तो उस हिसाब से एंड देन आई हैड डिसाइडेड कि इंग्लिश में 75 से ऊपर तो स्कोर करना ही करना है, बिकॉज जीके में जीएस में 20 के ऊपर जाना ऑल्सो समटाइम्स फील्स डिफिकल्ट। और मेरा जो अटेम्प्ट क्लियर हुआ था तब कट ऑफ जीएस का भी कम हो गया था। आई थिंक 19 या कुछ 18 ऐसे कर दिया था, बिकॉज पेपर उस टाइम बहुत डिफिकल्ट आया था, तो उसका कट ऑफ गिर गया था। बट अदरवाइज इफ पीपल आर प्लानिंग और एमिंग कि कट ऑफ ओवरऑल क्लियर करना है, तो जीएस में एटलीस्ट 25 to 30 इज अ गुड स्कोर, बिकॉज उसके बाद तुम सेफ जोन में रहते हो कि तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा। तो 75 to 80 इन इंग्लिश, दैट वुड बी अ सेफ स्कोर। इस हिसाब से मैंने मेरा रिटर्न का स्ट्रेटेजी बनाया। We'll talk about screening test because some way or the other, after clearing the written, there are people who really have prepared good about SSP, पर वो पहले दिन ही out हो जाते हैं because they are unable to perform. And I do feel that screening plays a vital role, despite a lot of challenges. Maybe you have a good personality, but there are time कि group ऐसा आ जाता है कि
you are unable to express yourself or you are just being chaotic among them. And कई बार तो ऐसा भी होता है सृष्टि, पूरा बैच का बैच वॉश आउट कर देते हैं because they feel like none of them can be, they are showing the qualities that is being required by the board. You tell me, according to your experience, what are the factors which is important for screening test and how somebody can prepare exactly for this test? So I have attended two SSBs. First में I got screened in and then recommended, and second में I got screened out. So Yeah. first जो screen in वाला था, I'll talk about it. First and foremost, I learned one thing that तुम्हें ज्यादा आगे का नहीं सोचना. जो टास्क तुम्हारे सामने है, जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस इन स्क्रीनिंग इज OIR, तो तुम OIR पे ही फोकस करो. उसके बाद आगे का कुछ मत सोचो. वो भी जो सेट तुम्हारे सामने है, completely focus on it. Be present in that moment and just attempt your OIR शीट, जो भी क्वेश्चंस है वो. सेकेंडली OIR का थोड़ा पहले से भी प्रैक्टिस करना चाहिए. ऐसे नहीं, इवन इफ यू थिंक दैट यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स या फिर ऐसी चीजें, यू स्टिल हैव टू प्रैक्टिस इट सो दैट उस टाइम लिमिट में, उस प्रेशर के अंडर यू आर एबल टू सॉल्व मैक्सिमम. एक तुम्हें अंदाजा आ जाए बिकॉज यू हैव जस्ट डन इट वंस. तो OIR का तो ये पार्ट हो गया. सेकेंड वॉज PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. तो पिक्चर परसेप्शन के वक्त मेरा जो पिक्चर आया था स्क्रीनिंग के प्रोसेस में, दैट वाज कि एक कार एक ट्री में डैश हो चुकी है. देयर वर पीपल हु वर कैरिंग अ पर्सन एंड ही वाज अनकॉन्शियस. देयर वाज अ कार बिहाइंड. तो दैट वाज अ पिक्चर. तो इस पिक्चर में देयर वाज एक्शन. तो आई मेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस. बट वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, दैट आई वाज एबल टू पुट इन दैट स्टोरी. और उसके बाद उसका सोल्यूशन, और वो जो इंसान था उसने उस एक्सीडेंट से क्या सीखा, तो एक पॉजिटिव आउटकम भी आ गया था उसके बाद. तो आई न्यू एन इंसिडेंट लाइक दैट, तो आई वाज एबल टू मेक अ वेरी गुड स्टोरी आउट ऑफ इट. तो इससे जब मुझे वो पता है कि मैंने स्टोरी अच्छा बनाया, आई वाज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अभी आया डिस्कशन का बारी. तो आई वाज चेस नंबर 12 दैट टाइम, और स्टार्ट हो गया. सब अपना स्टोरी नरेट कर रहे थे. स्क्रीन इन में आई फील जब नरेशन का पार्ट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें यू हैव दैट 1 minute and everyone is going to listen to you. So उस 1 minute में I feel you have to narrate your story with full conviction and you have to believe in your story. That is most important. तुम्हें तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव होना चाहिए and you have to present it in that way कि लोग वो सुने. ठीक है, बिकॉज वो 1 minute no one is going to interrupt you. Everyone is just listening to what you are saying. So I think make the best possible narration when you have that 1 minute. सबका नरेशन हो गया मेरे स्क्रीनिंग के वक्त. एंड जब चेस नंबर 1 ने उसका स्टोरी बोला, तो आई फाउंड इट वेरी जेन्युइन. आई मीन ये एक्चुअली होता है. तो मैंने बोला, जब मेरा नरेशन हो गया उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में मैंने डिसाइड कर रखा था कि आई विल सपोर्ट हर स्टोरी. मेरा स्टोरी भी अच्छा था, बट आई फाउंड हर स्टोरी टू बी वेरी कॉमन, जो कि बहुत ज्यादा होता है. जो एक्सीडेंट का उसने सिनेरियो डाला था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल सपोर्ट हर स्टोरी करके. एंड दैट हैपेंड. मैंने जब उसको सपोर्ट किया, तो जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, बीइंग अ पार्ट ऑफ फ्रेशर्स, बट स्टिल द गर्ल्स वर क्वाइट गुड, तो वी ऑल एग्रीड. बट थोड़ा वो स्टार्टिंग में chaos होने लग गया था, तो वी वर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स. तो मैं ग्रुप नंबर 2 में थी और ग्रुप नंबर 1 अलग हो गया था. दे वर नॉट एबल टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन. आर ग्रुप ऑन द अदर हैंड, आई फेल्ट कि थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. और फिर उन्होंने ग्रुप नंबर 2 में से मेरा स्टोरी उन्होंने ये किया. वी टुक फॉरवर्ड माई स्टोरी एंड देन वी केम मेड अ कॉमन स्टोरी. हमारा आ गया था, ऑलमोस्ट एक कॉमन स्टोरी आ गया था. एंड दैट्स इट. जो कुछ लोग बोले, जो बिल्कुल भी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, सो द असेसर्स डिड गिव देम अ चांस टू स्पीक, और उसमें से भी 1-2 ने मेरा स्टोरी सपोर्ट किया था. तो बीइंग कॉन्फिडेंट थ्रू आउट एंड बिलीविंग इन योर स्टोरी एंड बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन. डोंट बी टू एडमेंट. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी है बट सामने वाला का थोड़ा ज्यादा कॉमन दिख रहा है या फिर ये चीजें होती है, तो सपोर्ट देम. व्हाई नॉट? क्यों नहीं सपोर्ट करना है? ऐसे नहीं कि खुद का ही स्टोरी पुश करना है. यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रुप. तब तुम्हारा टास्क ये है कि कॉमन स्टोरी पे आना है. उसमें तुम्हें तुम्हारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखना है, देना है. गिव गुड पॉइंट्स ताकि ग्रुप भी वो एक्सेप्ट करे और तुम्हारा सुने. तो वो होना चाहिए स्क्रीन इन में. आई फील सेकेंड स्क्रीन में मैंने क्या गड़बड़ की थी कि OIR तो मेरा हो गया था अच्छे से, बट जब पिक्चर आया तो दैट वाज पिक्चर ऑफ अ विमेन स्टैंडिंग विथ हर बेबी, और पीछे 2 मेन, दे वर जस्ट स्टैंडिंग देयर. तो इसमें मुझे कुछ एक्शन दिखी नहीं. तो मेरा जो फर्स्ट थॉट आया स्टोरी का, दैट वाज थोड़ा फैमिली रिलेटेड की अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न गर्ल इज देयर,
तो उसका अपब्रिंगिंग कैसे किया, वैसा वैसा स्टोरी बन गया था मेरा। अभी प्रॉब्लम क्या हुई, वो स्टोरी लिखते वक्त ही मेरे दिमाग में और एक स्टोरी आ गई, एंड वो थोड़ी अच्छी थी। दैट वाज अराउंड पोलियो कैंपेन, कि एक गांव है और उधर एक वो मतलब पोलियो कैंपेन चल रहा है, दीज टू पीपल आर द वॉलंटियर्स देयर, एंड दिस वुमन हैज ब्रॉट हर बेबी फॉर पोलियो का फर्स्ट वैक्सीनेशन, ऐसे। Okay. एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टोरी, बट अभी मैंने ये ऑलरेडी लिख दी थी, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया Yeah. लिखते वक्त ही। Mhm. तभी मैंने गड़बड़ कर दी जब वो सेकंड स्टोरी आया, बिकॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग अब तो मेरा ये स्टोरी का कुछ रेलेवेंस है नहीं, ऐसे वैसे Mhm. मिक्स्ड इमोशंस। एंड चलो मैंने वो स्टोरी कैसे तो कंप्लीट कर दी, बट फिर आई वाज नॉट एबल टू गिव माय बेस्ट, पुट Okay. माय बेस्ट ऑन द पेपर। वो चला गया, फिर वही कंटिन्यू पीपीडीटी स्टार्ट होने तक मेरे दिमाग में वही चलता रहा, यार ये अच्छा स्टोरी था बट अभी वो तो मैं नहीं लिख पाई। फिर Mhm. डिस्कशन में भी जब मुझे नरेट करना था स्टोरी, आई फंबल्ड बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव इन माई स्टोरी। मुझे लगा मेरा स्टोरी तो ऐसा ही है कुछ, तो इट इज Mhm. नॉट अ वेरी गुड स्टोरी दैट आई मेड फ्रॉम दैट पिक्चर। वो Okay. उसमें मैं फंबल कर गई। उसके बाद योर ग्रुप ऑल्सो नोस कि तुमने जो स्टोरी बनाई है उसमें यू आर नॉट एबल टू नरेट अच्छे से, तो व्हाई वुड दे लिसन टू यू व्हेन यू आर इन अ डिस्कशन। तुमने Exactly. खुद को तब इतना कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट किया ही नहीं, यू डिड नॉट बिलीव योर ओन स्टोरी। फिर डिस्कशन में भी व्हेन आई ट्राइड टू पार्टिसिपेट एंड आई गेव गुड पॉइंट्स, बट हमारा ग्रुप ऐसे था कि पूरा केओस 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 केओस। ग्रुप्स दो बनाने के बाद भी गर्ल्स वर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर, और हमारा हर हर थोड़े टाइम पे स्टोरी ही चेंज हो जा रहा था, स्टोरी ही। सो वी वर वर्किंग ऑन अ स्टोरी, उसका थोड़ा कुछ आ रहे थे हम लोग, तो बाद में नया स्टोरी और सेम ग्रुप, तो आगे ही नहीं बढ़ पाए, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा था। हमारा पूरा बैच वो वॉश आउट हो गया। Okay. एनसीसी स्पेशल का एंट्री था ये। तो रिटर्न और एनसीसी स्पेशल में भीड़ ज्यादा होती है, देर आर मोर देन 300 और 400 का रिपोर्टिंग होता है लड़कियों में एट अ Mhm. टाइम। तो मेन उनका यही रहता है कि स्क्रीन इन में आधे से ज्यादा, आधे से भी नहीं, ऑलमोस्ट 90% लोगों को वापस भेज देते हैं। तो वो ग्रुप में मेरा तो पूरा ग्रुप वॉश आउट हो गया था, बट आई न्यू कि मैंने खुद से परफॉर्म नहीं किया अच्छे से, तो मैं तो स्क्रीन आउट होने ही वाली हूँ। So this was the difference between first screen in and then second screen out. Actually, you have analyzed it so well, Shrishti. I was just listening you very carefully. There are few pointers which I want to include. Firstly, we practice a lot, we see a lot of videos, बट हम वहां जाके उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट, दे मेक माइन्यूट चेंजेस इन दी, जब वो ब्रीफिंग कर रहे होते हैं किसी भी टास्क की, तो पीपीडीटी से पहले दे मेक श्योर दैट ओल शेप में सर्कल करना है या आपको कैरेक्टर्स को इस तरह से सिंपल करना है, तो दे मेक स्लाइट चेंजेस जस्ट टू डिफरेंशिएट कि बच्चा कहाँ पे गलती कर सके या उसका लिसनिंग पावर इतना स्ट्रांग है या नहीं है। एंड लाइक यू सेड 30 seconds आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द पिक्चर इज शोन, कंज्यूम एग्जैक्टली 30 seconds फॉर इट, एंड मेक श्योर जब आप लिख रहे हैं स्टोरी तो उसमें कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब इतने मास अमाउंट में सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट, आई मीन टू मेक इट फ्रॉम आर लेवल बेस्ट। एंड व्हेन Yes. इट कम्स टू नरेशन, सो देयर इज अ टाइम गैप जब आप नरेशन के लिए जा रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, जो 5 से 10 मिनट मिलते हैं। आई हैव सीन पीपल चेंजिंग देयर स्टोरीज इन दैट पाथवे बिकॉज बात करने लग गए, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, so that loses that focus is lost at that point of Mhm. time. So it's always good Yes. to remember your own story and revise it over and over again in your head, because जब सब नरेशन कर रहे होते हैं तो सबका हार्ट बीट तेज होता है, सब एक दूसरे की स्टोरी के साथ, I mean, they're trying to listen also, but at the end, they're also trying to remember their own story. So, वो 10 मिनट Right. का जो time gap है, that becomes very important. And I always Yes. say, whether it's screening, interview, and conference, wear your best attire, because Yes. these are the turning points. And if you're wearing something nice, your hair are properly tied, and you're looking presentable, it is the first impression that is coming to the assessor. So dress up True. nicely to the way you can. Your body gesture should be in a way that you are inclined to somebody, you are trying to listen somebody, not like you're Correct. relaxed after narration. If you're relaxed and you're not paying attention, that shows some part of your body language that you are not interested in this discussion. Agree to Yes. someone point, do not disagree. I mean, आप नहीं agree कर पा रहे हो तो you can add on, you can, suggest something, but be constructed in the group. These are very Yes. minute thing that every person should pay attention, because थोड़ी सी चीजों पे वहां पे इतने बल्क में बच्चे आ रहे हैं, तो वहां से आपकी प्रेजेंस नोटिस हो, दैट इज अल्टीमेट टास्क वी हैव टू डू. एंड एट लास्ट, डू Yes. नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विद द एसेसर्स.
इवन इफ इट Yes. GDs performed, मेक श्योर दैट अपने ग्रुप मेट्स के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, एग्री टू देम। एंड अगर ज्यादा ही फिश मार्केट हो गया है, स्पेशली रिपीटर्स के ग्रुप में होता है, सो एट Yes. दैट टाइम टेक अ पॉज, लेट देम सेटल डाउन एंड देन स्पीक अप योर पॉइंट. These are a few suggestions from my end. We'll talk about psych, and I really want to discuss it nicely because psych is some way or the other, Shrishti, is very important because you are giving something in written and they are going to evaluate your performance, and you don't know on what basis they are making judgments. So whether it's Yes. TAT, WAT, SRT, and SD, I want to discuss it with you with examples कि आप उन चीजों को लेके कैसे Yeah. अंडरस्टैंडिंग रखते हो, प्लीज. Yeah. Psych plays a very major role in your recommendation. So, psych officer is someone who is not going to see you physically, right? Right. तुम जो 12 पेजेस का जो शीट पे जो भी लिख के देते हो, is entirely going to assess you on those 12 sheets. तो वो बहुत ज्यादा मेजर पार्ट मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारे रिकमेंडेशन के प्रोसेस. स्टार्टिंग विद टैट. तो टैट में देर आर 12 स्टोरीज, राइट? तो जब तुम्हें कोई स्टोरी दिखाई जाएगी, आई थिंक हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड इज, वो देखो. उसके बाद एक्शंस तुम्हें तुम्हारी स्टोरी में कैसे लाने हैं उसके बारे में सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट जस्ट डिस्क्राइब द पिक्चर एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट. ट्राई एंड गिव एक्शंस. एंड आई फील जब तुम एक्शंस देने लग जाओगे स्टोरी में, दैट इज व्हेन तुम्हारा स्टोरी एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लेके बन भी जाएगा अच्छे से. यू हैव टू रिलेट इट विद सिनारियोज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड या फिर ऐसे कि देखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर देर इज अ पिक्चर जिसमें 3 लड़के साइकिलिंग कर रहे हैं, सो हाउ विल यू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट? So maybe there is a group of people who are participating in a cyclathon or something like that, and they decided कि उसका हमें थोड़ा practice करना है. तो on a Sunday they planned it and then they went on a ride together. They analyzed it कैसे क्या करना है, and then after the end of that day they sat together, made discussions, and then they participated in the cyclathon. या फिर इसको एकदम कॉम्पिटिटिव वे में नहीं ले जाना है तो थोड़ा कि बहुत ज्यादा मंडेन शेड्यूल हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो ऑन अ संडे दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ साइकिल हैक बाहर, एंड देन दे एक्सप्लोर द विलेजेस नियर बाय. उसमें उनको बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस आ गए, तो यू कैन मेंशन सम ऑफ इट. तो ऐसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट दैट. उसके बाद राइटिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे होता है कि थॉट्स है बट यू आर नॉट एबल टू पेन इट डाउन. तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो नॉट जस्ट फॉर टैट बट इवन फॉर ऑल द साइड टेस्ट दैट आर देयर. उसके बाद तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग जो भी है, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, तो यू गेट अ बेटर क्लैरिटी कि माइंड और पेन, हाथ का कोऑर्डिनेशन हो रहा है. जैसे सोच रहे हो वैसे तुम पेन भी कर पा रहे हो उसको शीट पे. दैट इज वन पार्ट ऑफ टैट. उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट में जो स्टोरी है, which you have to make yourself, there is no picture, the blank slide is shown. तो वो यू डिसाइड पहले ही, बिकॉज वो स्टोरी इज गोइंग टू से मच मोर अबाउट यू टू द, दैट इज गोइंग टू गिव एन वेरी गुड आइडिया ऑफ हु यू आर टू द असेसर. तो वो स्टोरी एक ऐसी चूज करो विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड योर पर्सनैलिटी इन सम वे, या फिर हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन योर पर्सनैलिटी या फिर लाइफ. पॉजिटिव रहे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हमें पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है. वी वांट योर एक्शंस टू बी पॉजिटिव. हम थोड़ा पॉजिटिव स्टोरी पे ही फोकस करेंगे. सो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉजिटिव स्टोरी विच हैपेंड विद यू एंड हाउ यू डेल्ट विद इट, उसके बाहर आप कैसे आए, क्या किया आपने, दैट यू कैन वेरी ब्यूटिफुली मेंशन इन दैट 12th स्टोरी. कमिंग टू वैट. वैट के लिए आई फील मैंने कैसे किया था, हर दिन आई यूज टू प्रैक्टिस 15 to 20 वैट का वर्ड्स. Okay. इनिशियली आई टुक अ 15 day कोचिंग. तो उसमें मुझे आइडिया आ गया था कि वैट में आई वाज नॉट एबल टू गिव क्वालिटी सेंटेंसेस, मतलब उससे मेरे थॉट्स बाहर नहीं आ रहे थे, जस्ट नॉर्मल सेंटेंसेस आ रहे थे. तो दैट वाज नॉट टेलिंग सो मच अबाउट मी टू द असेसर. और जब मुझे पता है कि उसके बेसिस पे ही इज गोइंग टू assess me, so I have to tell him about me. That cannot be just mere sentences that I write. तो मेरे thoughts उस तरीके से lined up होने चाहिए थे. So if you take an example of a negative word हम लोग लेते, क्योंकि हम लोग normally negative word को कैसे negative से associate कर देते हैं, तो वो नहीं करना है. कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर failure आ गया, so how you can overcome failure? Perseverance and consistent efforts overcome failure. तो इसको तुमने क्या कर दिया, तुमने दिखाया कि फेलियर अगर आया भी है लाइफ में तो उसको ओवरकम कैसे करना है. दैट इज शोइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट यू.
उसके बाद अगर हम लोग किल इस वर्ड का एग्जाम्पल ले, तो किल को हम ऐसे डाल सकते हैं कि कंफर्ट किल्स ड्रीम्स, या ऐसे कुछ। अभी इससे क्या हो गया कि इससे समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे इंसान हो जिसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीजें करने की आदत है। नाउ दिस इज नॉट जस्ट शोइंग, ये तुम्हें तुम्हारे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होगा, उस तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस आपको डेवलप भी करना है। एंड जब तक वो नहीं होता है ना, पेपर पे वो आएगा ही नहीं। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट उस तरीके से, हर चीजों को अपने लाइफ में उस तरीके से सोचो कि अगर नेगेटिव है, अभी आगे हम लोग क्या पॉजिटिव स्टेप्स ले ताकि ये चीज हमारी एलिमिनेट हो जाए, उस हिसाब से यू हैव टू थिंक। दैट विल ऑल्सो गो वेरी इजीली। एंड प्रैक्टिस एवरी डे 15-20 वर्ड्स के लिए आई डोंट फील ज्यादा कुछ टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस करो और टाइम लगा के, टाइम के हिसाब से यू प्रैक्टिस इट। कमिंग टू एसआरटीज, तो एसआरटीज में इट इज वेरी सिंपल भी। मैं भी पहले ये मिस्टेक करती थी कि आई यूज टू राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता था। एंड देन आई यूज टू कंप्लीट दिस 30-35 एसआरटीज पहले, जब मैं वो लॉन्ग सेंटेंस लिखती थी। यू डोंट हैव टू बी इलेबरेटिव व्हेन यू आर राइटिंग, यू हैव टू गिव योर जो तुम लोग डिसीजंस ले रहे हो वो सिचुएशन के वक्त, यू जस्ट हैव टू पुट इट डाउन। तो अगर आप, ऐसा है कि विल टेक एन एग्जाम्पल कि हम लोग, you are a final year exam student, you're going to your college for the final exam, but you forgot your admit card. तो I'll अभी अगर आप एग्जाम को जा रहे हो तो तुम थोड़ा पहले ही जा रहे हो, ऐसे नहीं कि एग्जाम 12 बजे एंड यू आर रीचिंग द एग्जाम सेंटर एट 11:45, राइट? यू विल लीव अर्ली। तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस सा सोल्यूशन है कि तुम नियर बाय कॉलेज के कुछ साइबर ये कैफे वगैरह ढूंढोगे और उधर से एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट ले लोगे। सो दैट यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन कि if I जब हमें ये रियलाइज हुआ, I went to the nearby cyber cafe, got a new printout, then went and appeared for my exam. ये तीन चीजों में खत्म, कॉमा कॉमा कॉमा। पूरा उसको डिस्क्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और ऐसा भी चीज होता है कि एक प्रॉब्लम है एंड यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस देने ही नहीं है और करना ही नहीं है। एक ही सॉल्यूशन पे यू हैव टू स्टिक, ये मैंने किया, Okay. आई डिड दिस। ऐसे नहीं कि और आई डू दैट, तुम्हें ये ऑप्शन नहीं दिखाना Indecisiveness दिखता है। है. राइट, तुमने जो डिसाइड किया है, गिव वन सॉल्यूशन, स्टिक टू इट और उसको खत्म करो, गो टू द नेक्स्ट एसआरटी। डोंट लीव एनी एसआरटीज इन बिटवीन। जो है, जैसे जैसे तुम रिएक्ट करोगे, पुट इट डाउन। उसके बाद एसआरटीज का तो ये हो गया, और ये रियल लाइफ अवेयरनेस ही है। हम लोग कैसे ना थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं एसआरटी के वक्त। नॉर्मली ऐसे बहुत टाइम होता है कि नॉर्मली विल नॉट रिएक्ट टू अ सिचुएशन जैसे हमने वो एसआरटी में लिखा है, विल हैंडल इट इन अ वेरी डिफरेंट एंड इन अ गुड वे। बट व्हेन यू आर पुटिंग इट डाउन, आप ज्यादा सोचने लग जाते हो कि मैं क्या 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 करूंगा, एंड यू कॉम्प्लिकेट थिंग्स देयर। सो दैट शुड नॉट हैपन। जो आप करोगे उसको जल्दी से लिख दो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एसआरटी। Okay. उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो फॉर दैट यू हैव टू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ everything, and you have to be transparent about it. Self description, I think, plays a very major role. How you think about yourself, how your parents think about yourself, how your friends think about you. तो ये सब चीजें you have to observe. You can ask for feedbacks. उसके बाद खुद भी थोड़ा एनालाइज करो कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लाइफ को लेके क्या अप्रोच है, व्हाट डू आई वांट टू डू। उसके बाद ऐसे सब चीजें, तो यू हैव टू सिट डाउन, थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोस प्रॉपरली, Okay. एंड देन मेक अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मैंने मेरा पहले ही बना के रखा था, ऐसे नहीं कि मैंने उधर जाके ऑन द स्पॉट लिखा है। आई हैड माई सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मैंने उस पे वक्त लेके पूरा डिसाइड करके कि दिस आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल अबाउट मी, और मैंने वो बराबर उसको ये किया। अभी ये जो चीजें तुम लिख रहे हो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, दैट शुड नॉट बी समथिंग विच इज नॉट यू, क्योंकि तुम्हारे पीआईक्यू और तुम्हारे टैट से द असेसर इज गोइंग टू बी एबल टू मेक आउट, उसको वो क्लूज मिल जाएंगे किधर ना किधर। तो जो तुम हो उसको लेके ही लिखो, ऑन द सिमिलर लाइंस। ऐसे नहीं कि यू आर ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट, तो वो तो तुम्हारा फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन उधर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले ही जो तुम हो, तुम्हारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उसके साथ आपने क्या किया, कैसे किया, हाउ आर यू एज अ पर्सन, उसको पूरा तुम स्ट्रक्चर्ड वे में ये करो, लिखो, एंड देन उसको साइड टेस्ट में लिखो। Well, Shrishti, psych is something which I know that you're going to tell everything, but I'm most curious about your personal interview. See, there are two kind of candidate. One, those who don't have anything to write on PIQ, and others are like you, whose PIQ is completely filled up with achievements, sports. I don't think so. There's one segment which you have left blank.
I'm really interested. How did you performed in the personal interview, and what kind of question did they ask you? And is there any situation that they bombarded on you during the interview, and how have you handled that as well? तो इंटरव्यू आई स्टार्ट फ्रॉम द पीआईक्यू. Okay. सो पीआईक्यू में जैसे आपने बोला तो मेरा पूरा पीआईक्यू वाज फिल्ड स्टार्टिंग टू एंड, पूरा 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 ज्यादा था. एंड एजुकेशन में भी आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो फिल्ड था. एनसीसी का पूरा कॉलम्स फिल्ड थे. उसके बाद अचीवमेंट्स में मेरे कॉलम्स फिल्ड थे. एसएसबी में फर्स्ट एसएसबी तो उसके बारे में था. हॉबीज में इट वाज कंप्लीटली फिल्ड. तो ये सब चीजें होने के बाद एक थिंग आई न्यू दैट आई हैव सो मच दैट आई हैव डन. तो उसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस भी सभी एरिया से आ सकते हैं. सो इन Exactly. माय इंटरव्यू मैं ऐसे बोलूंगी देयर वाज नथिंग दैट द इंटरव्यूअर लेफ्ट. उसने पूरा का पूरा स्टार्टिंग टू एंड मुझे पूछा है. मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1.5 आवर चला है. And he asked me about everything, every single thing that I've mentioned in my PIQ. फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद कराटे रिलेटेड, एनसीसी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, उसमें भी ही वेंट टू मच इन डिटेल कि ये सब्जेक्ट्स. एंड देन जो हमारे क्वेश्चंस का सेट होता है, इवन दैट वाज देयर. चलो वो तो हमें पता था कि वो आएगा ही. उसके बाद एनसीसी के बारे में, एनसीसी में क्या कैसे, इवन दैट. उसके बाद अचीवमेंट्स के बारे में. उसके बाद हॉबीज में भी हर एक हॉबी का उसने पूछा है मुझे, इंटरव्यूअर ने. एंड उसके बाद फाइनली तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है वो. जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ है. तो Okay. मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा चला. बट वन थिंग, थ्रू आउट द इंटरव्यू मैं प्रेशर में नहीं थी. अभी वन थिंग आई टोल्ड माई सेल्फ बिफोर गोइंग इन इज, अगर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आया विच यू डोंट नो, डोंट पैनिक. नहीं पता है तो नहीं पता है. यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन. नहीं Right. पता है तो बोल दो सीधा कि नहीं पता है. आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि उसके बारे में कुछ ऐसे इधर उधर से बना के आंसर्स नहीं देना. तो दैट वाज वन थिंग. अभी हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू जाने से पहले इज, मैंने पीआईक्यू ले लिया था. उसके ऊपर से आई मेड क्वेश्चंस कि मुझे क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है. आई रोट ऑल ऑफ देम डाउन. उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स उनको क्या होगा, हाउ विल आई आंसर दोस्त, तो मैंने वो भी लिख के रखा था. बिकॉज समटाइम्स कैसे होता है, यू गेट कॉन्शियस और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें तुम्हें बतानी होती है वो कहीं रह जाती है. बिकॉज Mhm. आंसरिंग के इसमें तुम हो जाता है कभी कभी कि यार मैंने ये चीज बोलनी चाहिए थी मेरे बारे में, बट वो मैं नहीं बोल पाई. तो आई रोट ऑल द आंसर्स डाउन कि मैं ये मेरा रिस्पॉन्स होगा इससे. उसके ऊपर वापस काउंटर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आई गेव अ थॉट टू देम एज वेल. और आई रिसर्च अबाउट इट, अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो, या फिर मैं इसका क्या जवाब दूंगी, कैसे दूंगी, हाउ विल आई हैंडल दोस क्वेश्चन. सो वैसे मैंने मेरे इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर किया था. फ्रॉम द प्लेस आई एम बोर्न टू योर स्टेट. उसके बाद अगर आप कोई एजुकेशन, अगर आपने कॉमर्स की है तो ये सब्जेक्ट्स थे. हर सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे होता है. फिर अगर बीकॉम का डिग्री तुमने किया है तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर अ जॉब और समथिंग. उसके बाद एलएलबी क्यों किया, तो Mhm. क्यों किया उसका तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए. एंड दैट कैन नॉट बी समथिंग कि ऐसे ही मन में आया कर लिया. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रीजनिंग टू एवरी क्वेश्चन दैट ही इज गोइंग टू आस्क यू. तो मेरे Right. केस में वो बहुत ज्यादा था कि पहले 10th के बाद 11th 12th कॉमर्स था, तब कराटे का मैंने एशियन चैंपियनशिप खेला. उसके बाद मेरा बीकॉम हुआ. उसके बाद तूने एलएलबी कर लिया. तो ये सडन चेंजेस क्यों है, ऐसा क्यों है. तो आई Mhm. वॉज एबल टू आंसर दोज बिकॉज मुझे पता था ये मेरे साथ हुआ है. बट टू बी एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि ये ऐसे हुआ था, दिस इज व्हाट वाज बेस्ट फॉर मी, Okay. इसलिए मैंने ये चीज की. यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन व्हेन यू आर आंसरिंग. एक्सेप्ट कर ले कि ये हो गया है. Okay. एलएलबी के बाद देन आई एम आल्सो इनटू द कोचिंग फील्ड. सो आई एम अ कराटे कोच बाय प्रोफेशन एज वेल एंड आई ओन एन एकेडमी हियर. तो 8 years से मैं कोचिंग में भी थी. तो मैंने इसलिए जॉब वगैरह कुछ किया नहीं बीकॉम के बाद. बिकॉज फाइनेंशियली आई वाज साउंड. मुझे इधर से आई वाज एबल टू अर्न एंड मैनेज माय एक्सपेंसेस, ये सब चीजें. तो Okay. वो एक पार्ट रहा. फिर वो कराटे से मुझे एज अ प्लेयर भी मैं स्टिल खेल रही हूँ. तो उसका फिर ये हुआ कि आप ये भी कर रहे हो. इंटरव्यू वाज लिटिल ये कि हाउ आर यू एबल टू डू सो मेनी थिंग्स. फिर इज Okay. दिस बिकॉज यू डोंट हैव द क्लैरिटी तुम्हें करना क्या है. तो व्हाट आई आंसर्ड वाज कि whenever I start anything, I don't want to just end it abruptly somewhere. If I start something, I want to get better at it. I'll prioritize कि अगर मैं 10 चीजें कर रही हूँ, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट उन 10 चीजों में क्या है. कि Mhm. समथिंग विच आई एम, अभी जैसे कि सपोज आई जस्ट टेक एन एग्जांपल रैंडमली. 2 महीने में मेरा एग्जाम है. उसके 1 मंथ पहले मेरा कोई टूर्नामेंट है.
और उसके 1 मंथ अभी जो करंटली मेरा चल रहा है, तो मैं अभी प्रैक्टिस वगैरह भी कर रही हूँ। तो मेरा 2 महीने का जो शेड्यूल रहता है ना, और उसमें फिर जो चीजें मैं कर रही हूँ उनको मैं प्रायोरिटाइज कर देती हूँ कि ये चीज अभी 2 महीने में मुझे है, तो मुझे इसके लिए इतना समय देना है। 1 महीने बाद मेरा टूर्नामेंट है, तो मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मेरे ये शेड्यूल से मैं प्रैक्टिस कर दूंगी। दूसरी चीज को मैं थोड़ा कम टाइम अलॉट करूंगी। सो दिस इज हाउ आई आंसर्ड, एंड आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ आई प्रायोरिटाइज थिंग्स, और उसके बाद मैं ये कर पा रही हूँ। बट आई एम नॉट अ पर्सन की कोई चीज मैंने स्टार्ट कर दी तो मैं उसको बीच में से ही छोड़ दूं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग की, जैसे मैंने हैंडबॉल वगैरह भी खेला था, बट 12th के बाद मुझे टीम ही नहीं मिली हैंडबॉल की, तो मैं वो स्पोर्ट कंटिन्यू नहीं कर पाई। कराटे बीइंग एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, मुझे मेरे हिसाब से आई एम एबल टू अलॉट टाइम, गो टू माई प्रैक्टिस, परफॉर्म। आई एम Right. नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, ऐसे सब। तो उन चीजों का तुम्हें तुम्हारा खुद का रीजन पता होना चाहिए, और वो क्लैरिटी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। सेकंड, मुझे मेरे फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ा ये किया था, हाउ ही ट्राइड टू प्रेशराइज मी दैट टाइम वाज कि यू आर अ सिंगल चाइल्ड, मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारा पीआईक्यू देख के कि योर मदर हैज नेवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जो भी तुम्हें करना है योर मदर हैज ऑलवेज अलाउड यू, सपोर्टेड यू। सो आई फील कि यू डू मन, यू आर वेरी ऐसे मन मर्जी वाली लड़की, जो करना है वो करना Oh है ना। God. तो हाँ, सो दैट हैपेंड, सो आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि सर दिस इज नॉट द केस, आई वर्क वेरी गुड इन अ टीम, एनसीसी में भी आई वाज द कैडेट कैप्टन ऑफ माय डिवीजन। तो क्या कैसे, हाउ एवरीवन अराउंड मी, आई मीन आई अडेप्ट एंड आई मिक्स विद एवरीवन, तो ये सब चीजें मुझे समझानी पड़ी। अगेन बीइंग ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, तो नो फादर का रोल इन माय लाइफ, तो उस हिसाब से ही वाज आल्सो ट्राइंग टू प्रेशराइज मी स्लाइटली कि थोड़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस ही आस्क्ड, बट आई न्यू माय आंसर ऑलरेडी, सो आई वाज फर्म ऑन दैट दोस पॉइंट्स। तो ऐसे सब चीजें हुई। एंड द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू यू नो stress a lot if he is trying to corner you by asking some questions or something। Right. जैसा है आंसर करो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि यू चेंज योर आंसर वेरी क्विकली, अगर ही इज ट्राइंग टू, यू फील दैट यू आर रॉन्ग समवेयर, डोंट डू दैट। इफ यू नो यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली एंड दिस इज व्हाट योर रीजन वाज, स्टिक टू इट, स्टिक Hmm. टू इट। इफ यू डोंट नो समथिंग, जस्ट स्ट्रेट अवे से सर आई डोंट नो अबाउट दिस, मे बी आई गेट बैक टू यू लेटर, है ना। फिर उसके Right. बाद तुम रिसर्च भी करके रखो, इन केस कॉन्फ्रेंस में यू गेट अ चांस तो यू कैन जस्ट से इट अगेन। नॉर्मली इतना मिलेगा नहीं, बट मे बी इवन इफ ही रिमेम्बर्स एंड यू हैव नॉट रिसर्च अबाउट इट, तुम्हें जो चीज पता नहीं थी, so then that does not give a good impression about you। तो Right. फोकस ऑन दोज थिंग्स। हॉबीज के बारे में इफ आई हैव टू टेल, हॉबीज का भी आई वाज आस्क्ड इन डिटेल कि बाइक Okay. राइडिंग मेरी हॉबी थी, तो विच राइड्स डिड यू गो ऑन, डिड यू जॉइन एनी ग्रुप, बाइकर्स ग्रुप, सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर बाइक, उसके Hmm. बारे में थोड़े स्पेसिफिकेशंस। ट्रैकिंग, सो हाउ डू यू डू योर ट्रैकिंग, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स, तो ट्रैकिंग के लिए वक्त कैसे निकाल पा रहे हो, ऐसे सब चीजें मुझे पूछी थी। जियो पॉलिटिक्स में एनी थ्री इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एनी थ्री नेशनल अफेयर्स अफेयर्स। फिर उसके Okay. बाद स्टेट का भी मुझे पूछा था, एनी थ्री स्टेट करंट अफेयर्स ऐसे। फिर कुछ एक दो चीजों पे मेरा ओपिनियन लिया था, दैट आई वाज एबल टू गिव। फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी, ये पूछा था। एंड या प्रेटी मच दैट, तो ऐसे पूरा इंटरव्यू वन Hmm. एंड हाफ आवर चला। I mean, Shrishti, by listening you, one thing I'm pretty sure that you were mentally prepared that these questions are going to be bombarded on you. They will be asking you, and therefore you have prepared your mind. And the one thing that you have said is really impressed me that don't change your answers. They'll put you in situation. There are times they'll say कि you love somebody and now you want to marry and your parents are not convinced. And वो थोड़ा situation को और change करते जाएंगे और change करते जाएंगे. You have to stick to what you have said at the first place, whether it's right, whether it's wrong. You made a decision, you made a decision. And like you said, the moment he twist and turn the situation in certain way, you feel like you, okay, no, other side is better, then you change your answer. That shows again your indecisiveness, that what you decide you don't follow. So Yes. somewhere or the other you are right on those areas. And like you said, PIQ is important. We'll talk about GTO. GTO is a group performing task, and you already are a sports person. So somewhere or the other, I think it is comparatively easier for you, but still there are 9 tasks. The evaluation is there, GTO is there to observe you. What are the few observations that you have made in GTO in apparently 3 to 4 tasks we can discuss? I'll start with group progression exercise. तो Okay. इसमें जीपी में whenever a model is shown, first and foremost you have to observe everything that is shown there। ठीक है, अच्छे से देखो। उसके बाद नो सेकंड थॉट्स हियर इन देयर।
सी एंड ऑब्जर्व, उसको दिमाग में सेट करते जाओ, उस मॉडल को तुम्हारे दिमाग में ठीक से रखो। उसके बाद व्हेन यू आर गिवन ए टाइम टू पुट द सॉल्यूशंस, प्रायोरिटाइज अच्छे से करना कि व्हाट आर द इमीडिएट प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू हैंडल और यू हैव टू सॉल्व देम एट फर्स्ट। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको ऊपर रखो, जो थोड़े है कि यू हैव टाइम कि थोड़े देर बाद यू कैन एड्रेस देम, उनको थोड़ा तुम नीचे रखो। Okay. जीपीई में व्हेन सो तुमने तुम्हारा पेपर वगैरह सब दे दिया है, शीट दे दिया है, उसके बाद जब डिस्कशन का पार्ट आता है, यू विल गेट टू हैव कॉन्ट्राडिक्शंस इन ओपिनियंस। जीपी के वक्त ये बहुत होता है कि कोई अलग प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर देता है, कोई अलग प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर देता है। तो तुम्हारा जो पॉइंट है यू पुट फॉरवर्ड, इफ द ग्रुप इज एक्सेप्टिंग, गुड। इफ यू फील कि तुमसे बेटर कोई और सोल्यूशन दे रहा है उधर, सो जस्ट Okay. हियर देम आउट एंड देन यू हैव टू कम एट अ कॉमन सोल्यूशन। उसके बाद तुम्हारा ये है कि कॉमन सोल्यूशन पे आओ। अगर ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब चीजें हो रही है, गो अहेड, है ना, यू गिव कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स, उसको सॉल्यूशंस दो अच्छे से, क्या कैसे हम लोगों को डिवाइड करके वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। बी बी ओपन अबाउट इट व्हेन यू टॉक। बट अगर ऐसे कुछ हुआ तो डोंट ट्राई एंड बी वेरी डोमिनेंट। हो सकता है कभी तुम्हारा कुछ प्रायोरिटाइजिंग में गड़बड़ हो गई, बट समवन एल्स, तो उसको सपोर्ट करो एंड ट्राई टू कम एट अ कॉमन सॉल्यूशन। ऐसे भी होता है बहुत बार कि कोई एक बंदा होता है जीपी में जिसका पूरा कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम को लेके, बहुत ही ज्यादा। तो आई विल सजेस्ट कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यू हैव टू वर्क इन अ टीम। टीम जिस हिसाब से जा रही है उसको पुश करो। यू गिव योर पॉइंट्स, द असेसर इज लिसनिंग, वो सुन रहा है तुम जो भी बोल रहे हो ना, वो सुन रहा है। अगर ग्रुप ऐसे है कि तुम सही हो बट ग्रुप इज नॉट लिसनिंग, बट यू हैव स्पोकन योर पॉइंट, यू ट्राई टू कन्विंस देम। ट्राई करना तो हमारे हाथ में है, तो ट्राई एंड कन्विंस देम। अगर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी दे आर नॉट लिसनिंग, सो देन आई विल सजेस्ट कि ग्रुप के इसके साथ तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हमें ग्रुप का सोच के कॉमन सोल्यूशन पे आना है। डू दैट। उसके बाद जीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा ग्रुप का एक सोल्यूशन आया और तुमने बाद में बोल दिया कि आई डोंट एग्री विद द ग्रुप्स सोल्यूशन। आई सजेस्ट Right. डोंट डू दैट एट ऑल, क्योंकि ये कुछ ग्रुप्स में हुआ था मेरे वक्त। तो दैट दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट यू। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ग्रुप का जो आ रहा है, यू ट्राई एंड वर्क इन अ ग्रुप। जीपीई के बाद ग्रुप डिस्कशन में दो टॉपिक्स थे। तो फर्स्ट वन वाज अबाउट विमेन एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन वुमेन टू ग्रो, ऐसा उसके ऊपर था। तो व्हाट प्लेज अ मेजर रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ women in Indian society? Is it sports? Is it politics? Or is it government initiatives? ऐसे तीन सब हेड्स थे। तो नाउ आई स्पोक अबाउट ऑल ऑफ थ्री टुगेदर, ऐसे करके। आई डिड नॉट चूज और स्टिक टू वन सब हेड देयर, बट हाउ व्हाट आई डिड वाज आई इंटरकनेक्टेड ऑल ऑफ देम। मैंने बोला कि ये ओवरऑल ये है। तो वैसे क्या हो गया, ग्रुप में जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स दे रहा था ना, वो मेरे से एग्री कर रहे थे, दे वर आल्सो सपोर्टिंग मी। सो वो रीजनिंग अच्छे से अगर हुआ तो इवन इन द ग्रुप you don't have to be too dominant. If many Right. people are able to connect to you, they are going to support you. मैंने मेरे पॉइंट्स बोले, बाकियों को चांस दिया पॉइंट्स बोलने का, एंड देन देर इज अ मोमेंट कि सबके पॉइंट्स खत्म हो गए, फिर वापस मैंने मेरा सेकंड पॉइंट दे दिया। वो टाइम पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया, सब बोलने लग जाते हैं, तुम्हें भी समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो Right. देर विल कम अ पॉइंट जब एकदम बड़बड़ 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 और फिर कम हो गया, तब तुम तुम्हारा पॉइंट डालो और वो पॉइंट ऐसा रखो कि सब सुन रहे हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होने दो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा करते वक्त ग्रुप डिस्कशन में। आई वॉज नॉट टू डोमिनेंट, एकदम ज्यादा मैं ऐसे नहीं थी कि आई वॉज डिसअग्रिंग। एक आधा दूसरा मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ बोल रहा है ग्रुप मेंबर, तो आई विल से आई वुड डिसअग्री विथ यू। एंड उसके बाद वो डिसअग्री क्यों, उसका पॉइंट देके कंस्ट्रक्टिव पॉइंट देना, फिर ग्रुप तुम्हें वापस सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें तो ग्रुप डिस्कशन की हो गई। तो मेरा भी उन्होंने सुना, उन्होंने भी मेरा उन्होंने सुना, मैंने उनका सुना। आई वॉज एडिंग 2 पॉइंट्स। नाउ दिस शोज कि अगर तुम ग्रुप डिस्कशन में ऐसे है कि हाँ हर 1-2 मिनट बाद तुम्हारा पॉइंट दे रहे हो, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, तो ये सही बात नहीं है। यू हैव टू बी अटेंटिव, लिसन टू व्हाट एवरीवन इज सेइंग, उसको तुम ऐड करो, उसको बोलो कि एडिंग टू व्हाट चेस नंबर सो एंड सो सेड,
दिस इज राइट, आई थिंक यस वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, थोड़ा ऐसे लेट्स टॉक ऑन व्हाट इज नंबर टू सेड, थोड़ा ऐसे तुम अगर ग्रुप वालों को भी दिखाओगे उनका भी ट्रस्ट आएगा, दे विल सपोर्ट यू, यू विल सपोर्ट यू, तो ग्रुप डिस्कशन भी आराम से हो जाएगा। बाकी पीजीटी और इन टास्क में when you're given obstacles, तो you have to give solutions, तुम उसको देख के क्या सोच रहे हो कि हम लोग कैसे इसको ये कर सकते हैं, put forward your solutions। अगर तुम्हारे ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, ट्राई टू कन्विंस, ट्राई टू शो देम कि नहीं देखो ये ऐसे करके हो रहा है, लेट्स ट्राई एंड लेट्स डू इट, तो तुम करो। अगर ऐसे हो गया कि ग्रुप नहीं सुन रहा है इनिशियली, तो उनको पहले उनका आइडिया इंप्लीमेंट करने दो, उसके बाद टेल देम कि लेट अस ट्राई दिस नाउ, सी दिस इज नॉट वर्किंग, लेट अस ट्राई Right. दिस नाउ। और वो कन्विंसिंग एक पोलाइट वे में होना चाहिए, बट विथ कन्विक्शन। कन्विक्शन इसलिए जरूरी है कि यू कैन नॉट बी ऐसे कि एकदम अरे मैंने बोला था ना ऐसे ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव लेके, थोड़ा यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर स्पीकिंग, ताकि वो ये करे कि हाँ ये बोल रहा है, इसका एक बार करके देखते हैं, तो Hmm. वो होना चाहिए, तो देन द ग्रुप विल डेफिनेटली लिसन। अगर ऐसा ग्रुप आ गया कि बहुत ही ज्यादा सुन ही Hmm. नहीं रहा है, यू पुट फॉरवर्ड योर सोल्यूशन, बताओ कि आई एम थिंकिंग ये ऐसे करेंगे तो होता है, लेट्स ट्राई एंड कन्विंस देम, you are being observed, you are being Right. evaluated on what you are speaking, तो you will be in a good zone। और हमें ये चीज रखनी है याद, सब ग्रुप टास्क में, इट इज नॉट यू वर्सेस समवन एल्स, नहीं, तुम्हें तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा देना है। जैसे कि ये होता है कि तुम्हारी सीट के बारे में सोचो, दूसरों की सीट के बारे में मत सोचो, बिल्कुल। तो वो है यू हैव टू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड यू हैव टू बेटर इट, यू डोंट हैव टू थिंक कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हाउ विल आई गेट हिज परफॉर्मेंस डाउन, ये अगर तुमने दिमाग में लाया तो तुम्हारा भी परफॉर्मेंस जाएगा, वो बंदा तो अपना अपना अच्छा कर लेगा। तो जीटीओ के वक्त सपोर्ट एंड एट द सेम टाइम तुम तुम्हारे आइडियाज पुट फॉरवर्ड, वो तुम अच्छे से करो, तुम तुम्हारे ऊपर फोकस करके ब्रिंग आउट योर आइडियाज, गिव योर आइडियाज, पार्टिसिपेट एकदम अच्छे से। राइट। फिर ये सब का ना मुझे क्या फायदा हुआ था, मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बहुत अच्छे से हो गया था, आई कंप्लीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बस वर्टिकल रोप नहीं हो पाया था मेरा, वर्टिकल रोप छोड़ के बाकी मेरा सब कुछ हो गया था, एंड आई रिपीटेड वन और टू ऑब्स्टेकल्स ऑल्सो, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये हो गया। बट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अगर किसी का नहीं हुआ तो आई सजेस्ट कि उनको भी इतना ज्यादा दिमाग में उस चीज को लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव हम्म। टू गिव योर बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके लिए थोड़ा इनिशियली स्टार्टिंग में एसएसबी से पहले यू हैव टू स्टार्ट राइट। रनिंग, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, कीप योर बिल्कुल। सेल्फ फिट एंड हेल्दी। अगर तुम्हें थोड़ा किसी चीज का फोबिया वगैरह है तो ट्राई एंड ओवरकम इट पहले से ही, मतलब हाइट पे फोबिया मतलब कोई चढ़ाई नहीं होता है कभी इतना ऊंचा, तो ऊपर जाते वक्त दे स्लाइटली दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, उनको लगता है मैं गिर जाऊंगी वगैरह, तो थोड़ा आई थिंक ये सब चीजें पहले से कर लेनी चाहिए किधर ना कुछ ऐसे। उसके बाद ये जो स्नेक रेस थी, हम्म। वो सबसे बेस्ट पार्ट था, बेस्ट मतलब बेस्ट पार्ट, एंड मैं सबसे आगे थी बिकॉज आई एम अ कराटे एथलीट, तो पूरे ग्रुप को ये विश्वास था कि मैं अगर आगे रहूंगी तो आई विल बी एबल टू टेक एवरीवन फॉरवर्ड, एंड इसलिए मैं सबसे आगे थी। और बहुत अच्छे से हो गया हमारा, मतलब आई थिंक वी केम सेकंड, जब कॉम्पिटिशन लग जाती है सब में कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट आ रहा है, ये सब चीजें होती है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, वी लेफ्ट नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, इवन इफ आई वाज अहेड सबसे, आई मेड श्योर कि जो लास्ट वाला बंदा है सम वर अ लिटिल हेल्दी, तो उनको वॉल पे क्लाइम करके इस साइड लेके आना, या फिर जब वॉल्स क्रॉस करनी थी हमें बीच में, एंड देयर इज अ वेरी नैरो पार्ट टू क्रॉस इट, तो उस टाइम पे उस बल्ली पे से उनको वो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उधर वो तुम्हारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, तुम टीम के साथ कैसे काम कर रहे हो वो देख रहे हो, तो यू फोकस ऑन मेकिंग योर टीम विन, गेटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि ये इंडिविजुअल है ही नहीं, जीटीओ में जो है वो इंडिविजुअल वाला अप्रोच पूरा निकाल देना है, इट इज हाउ यू वर्क फॉर द टीम, हाउ राइट। यू हाउ यू आर बेनिफिशियल फॉर द टीम, तुमको ये दिखाना है चीजें, तो उस हिसाब से स्नेक रेस वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ज्यादा मजा आया उसमें। लास्ट जो कमांड टास्क था, मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिला था, मतलब आई वाज होपिंग कि इतना डिफिकल्ट ना आए, बट मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे था, मुझे वो पूरा रोटेटिंग दे दिया था स्ट्रक्चर्स, रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब वर्टिकली हम्म। रोटेटिंग और हॉरिजॉन्टली भी रोटेटिंग, तो उसमें सॉल्यूशन निकालना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। बट देन आई रिमेम्बर्ड समवन सेइंग कि वन ऑफ माय बडीज एनसीसी की कि इफ यू गेट अ डिफिकल्ट कमांड टास्क, थोड़ा पॉजिटिव होता है कि तुम्हारी द जीटीओ इज स्लाइटली
कंफर्म्ड अबाउट यू और इसलिए Mhm. तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क मिला है ऐसे। Right. एंड मुझे हेल्पर भी बहुत मेरे ग्रुप मेंबर्स ने बोला था, आई थिंक 3 या 4 बार मैं एज अ हेल्पर गई Mhm. थी मेरे ग्रुप में। सो ये सब चीजें मैटर करती है, ग्रुप का तुम्हारे पे ट्रस्ट क्यों बनेगा इफ यू शो इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मेंस देयर। नहीं, ग्रुप तुम्हें बुलाएगा ही नहीं। यू हैव टू शो देम कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ एंड यू हैव टू सपोर्ट, तभी वो तुम्हें करेंगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन जीटीए। The one thing which I liked is efficiency and effectively performing. I want to know your routine, Shrishti. How do you manage your time? Because effectiveness come from management of a lot of things. So in journal, I thought to, that was a part I was supposed to ask you in personal interview, but while you were describing each and every task and you were talking about strength and being physical fitness, and I also know that you are good at academics also. So, what's your regular routine used to be? Maybe it'll give somebody else an idea how they can utilize their time effectively. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू मी बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। Okay. तो I think for me, it started when I was in school. I was very hyperactive in school. I was a part of all the events that took place in school. My day used to start early. मेरा सुबह कराटे का प्रैक्टिस होता था, उसके बाद स्कूल होती थी, स्कूल के बाद हैंडबॉल प्रैक्टिस होती थी, या फिर अगर सुबह मेरा कराटे नहीं है तो वो दोपहर को शिफ्ट हो जाता था। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू हैव माय ट्यूशंस। ट्यूशंस 2 घंटा होने के बाद आई यूज्ड टू कम बैक होम। उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी चलता था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर करना है तो वो सब करके आई यूज टू स्लीप। तो बचपन से ही मुझे एक प्रॉपर शेड्यूल में रहने की आदत थी और लगाई गई थी घर से ही। Oh, तो माय मदर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स इन दोनों को बैलेंस करके यू डू एवरीथिंग। देयर इज नो वन हु विल स्टॉप यू, बट यू हैव टू फोकस ऑन बोथ एंड इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। right. ऐसे ऐसे भी नहीं कि किसी एक चीज को नेग्लेक्ट कर दिया और बस एक पे फोकस किया है। आई आई gave my best in managing and I was able to do it. So no one is born talented. You have to just not give up at any point in time. That is what I understood. Some things might come late to someone, some things would come naturally to someone. But the difference between both of them is they are giving their best. थोड़ा स्लो प्रोसेस इधर होगा, इधर में भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बट यू कैन नॉट स्टॉप गिविंग योर एफर्ट्स इन समथिंग यू वांट टू डू और इन समथिंग यू वांट टू अचीव। तो वो मेरे दिमाग में पहले से था। कॉलेज में भी मेरा शेड्यूल सेम रहा। मॉर्निंग आई यूज टू गो टू जिम इफ और एल्स इफ आई हैव प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस, उसके बाद कॉलेज करना है, उसके बाद मेरा वापस आने के बाद स्टडीज या फिर कुछ, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस होता था इंडिविजुअल कराटे का। कॉलेज के बाद अभी एनसीसी एनसीसी जब स्टार्ट हुआ तो पहले इनिशियल स्टेजेस पे सिर्फ संडेज पे फॉलो इन होती थी, बट देन व्हेन आई चोज आरडीसी और उसमें भी आई चोज द बेस्ट कैडेट इवेंट, तो शेड्यूल थोड़ा ये हो गया, तो हमारी रेगुलर फॉल इन होने लग गई। तो उस वक्त में कैसे हो गया था कि एनसीसी का जो बेस्ट कैडेट इवेंट है उसमें आई हैड टू फोकस, उसके जो 5 इवेंट्स है उसमें, तो वो मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गया था। उसके बाद कॉलेज वाज अ लिटिल सपोर्टिव, तो मेरा पढ़ाई में थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले आई यूज टू सिट विथ माई फ्रेंड्स, टॉक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मैं इसको कैसे करूँ, पीवाईक्यूज देख लूंगी, उस हिसाब से फिर पेपर का वो स्ट्रेटेजी बनाया। एक वीक पहले पेपर्स मैंने दे दिया अच्छे से कराटे के लिए। फिर तब मेरा कराटे का थोड़ा मैचेस वगैरह इतना कुछ हो नहीं रहा था, तो बीच में मैंने उस पे फोकस नहीं किया इतना। एंड आई डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज दैट टाइम, कराटे का इतना कुछ मेजर था नहीं। फिर आरडीसी से आने के बाद अभी आरडीसी से आने के बाद अभी मेरा शेड्यूल ऐसे कि आई स्टार्टेड विथ माय लॉ प्रैक्टिस। तो सुबह इससे पहले आई गो टू हॉर्स राइडिंग। आरडीसी से आने के बाद देयर इन आरडीसी आई सॉ शो जंपिंग एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड। आई वाज लाइक यार ये तो मुझे ट्राई करना है, बट हमारे इधर किधर था वगैरह ये सब मैंने रिसर्च किया नहीं था। सो व्हेन आई केम बैक आई वॉज ऑलरेडी फोकसिंग ऑन माई सीडीएस दैट टाइम, तो मैंने इतना सोचा नहीं था हॉर्स राइडिंग के बारे में। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, एसएसबी हो गया एंड मेरिट लिस्ट भी लग गई थी। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई लॉ प्रैक्टिस। तो तब इंस्टाग्राम पे मुझे जस्ट एक ये आया कि हॉर्स राइडिंग नियर बाय एट चरोली बुद्रुक, दैट इज एन एरिया नियर माई रेसिडेंशियल प्लेस। तो आई वाज लाइक आई वांट टू ट्राई दिस, कि अभी आ गया है, अभी एक बार जाके देखते हैं कैसे। एंड आई स्टार्टेड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। Being around horses is a privilege, Right. and I think horses are my lucky charm. जब से horses मेरी लाइफ में आए हैं, everything is touch wood going so well. And
कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट को साइड में छोड़ के जो मुझे उधर जाके मेंटल पीस मिलती है, जो क्लैरिटी मिलती है व्हेन यू आर ऑन अ हॉर्स, आई थिंक दैट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू जस्ट कैनॉट पुट इट इनटू वर्ड्स। तो इसीलिए दैट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, एंड हॉर्स राइडिंग हैज बिकम अ लाइफ स्टाइल। वेल, अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, आई नॉट जस्ट लीव इट बीच में अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है, थोड़ा मैं बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे दूंगी, जैसे अभी मेरे अगले 2 महीने आर फुल्ली प्लान्ड, तो मेरा वैसे होता है। तो प्रायोरिटाइज चीजों को कैसे करना है, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से के लिए तुम थोड़ा बाद में भी टाइम निकाल सकते हो, वैसे इफ यू हैव दैट क्लैरिटी एंड यू आर डिसिप्लिन्ड एंड यू आर कमिटेड टुवर्ड्स वॉट एवर यू आर डूइंग, आई फील कि हर एक इंसान जो भी है ना, वो ये सब चीजें कर सकता है। ऐसे देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू, यू जस्ट हैव टू गिव एफर्ट्स एंड पुश योरसेल्फ। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, मैं कभी भी मेरे कंफर्ट जोन में नहीं रही हूँ। देर आर टाइम्स व्हेन घर पे आने के बाद लिटरली एनर्जी नहीं बचती है कुछ और चीजें करने की, बट यू नो यू स्टिल हैव टू डू इट, बिकॉज अगर तुमने नहीं किया तो आगे जाके तुम्हें पता है वो चीज होने नहीं वाली है। सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ ऑन दोज डेज एंड कीप ऑन डूइंग इट डूइंग इट डूइंग इट। सोचो मत। एक चीज आई फॉलो इज, कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कुछ चीज करते वक्त, तो वो ब्रेन को बस ऐसे शट कर दो। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करो, बाकी कुछ सोचो ही मत। हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो हॉर्स राइडिंग ही करो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। व्हेन आई एम इन कोर्ट, आई विल जस्ट थिंक अबाउट द केस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। when I am at my karate class, I'll only think of how better I can teach my students or how I can improve their performance. तो ये चीजें तुम सेट रखो, डोंट एंटेंगल थिंग्स, जिस चीज को जितना टाइम दिया है उतना करो, एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू। Prishti, I mean, knowing about you and doing this podcast, do feel that it is going to impact a lot of people because one of the major challenges they feel is time management. And everybody have those only 24 hours like you have or any other candidate. Some are just preparing, some are doing job along with their preparation. So you have to put some extra effort to, to be a different person from the group that everybody wants to join the forge, but what extra you are doing, what extra mile, how you are preparing for it, what extra efforts you are putting into this thing. So that is very important. You are also an influencer. So how impactful is social media to you? And you feel that, how it has changed so many things for you? Earlier, when I opened account on Instagram or social media in general, it was just about me. So I love to see my life as a cinema. So I think Instagram पे when you post a reel, I go through it always. I see and I feel अरे हाँ, मतलब उस reel में I am, उस video में, उस post में I am the main character. So I like to see myself like that. So that is how I started with my Instagram at the first thing. I used to click good pictures of myself, या फिर इधर उधर जा रही हूँ तो उसका मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया, I posted about it. Okay. थोड़ा जब Instagram started growing, I mean the number of followers or the people who started getting connected with me increased, I realized one thing कि whatever I post is actually making an impact in someone's life. Right. So mostly I started feeling responsible because social media is a very powerful platform, is a very powerful tool if you use it in the right way. So I decided कि I will post things that I do, and if it's helping someone or it's motivating someone to do something which they never thought of doing in the first place, या फिर उससे किसी को positive energy मिल रही है, people are getting happy seeing it, so why not? So I post content on my things that I do. Nothing for followers or likes, but the things that you do, I just share it. I shared a recent post wherein I just shared what all things I do and what all happened with me. तो उसका मैंने एक post बना के डाल दिया था. I read the comments on that post. I've read everything. There are certain negative comments as well, but उस पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. But I read the positive comments that have come on it. So there were many girls, many boys who commented, "You're living my dream life." I was like, सृष्टि, तू जो सोच रही है कि तू ये सब चीजें कर रही है, मेरे लिए कैसे होता है ना, सक्सेस का डेफिनेशन कीप्स चेंजिंग. फॉर मी सक्सेस इज नॉट फाइनल एट एनी पॉइंट. अगर मैंने एक टूर्नामेंट में गोल्ड जीता, जीता, अभी उसके बाद क्या, मेरा दिमाग हमेशा वैसे चलता है. सो Right. इवन इफ आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एशियन चैंपियनशिप बैक इन 2018, वो 2018 में हुआ, अभी क्या, व्हाट आर Mm. यू डूइंग नाउ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, मेरा उस हिसाब से दिमाग चलता रहता है. Mhm. तो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी ड्रीम लाइफ है, यू आर लिविंग इट, ऐसे
you feel ki Srishti, see, this is just what you did before and you shared about it, but people are getting so motivated. ऐसे भी comments थे कि because of this post I have now again started preparing for it and I think I needed this post. तो ये चीजें जो है ना किसी की लाइफ में you come you come as a positive ray of hope or something like that, that matters to me the most. And ऐसे है कि फिर उस हिसाब से आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग वैसे। उसके बाद मैंने थोड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह भी किए हैं, दैट Okay. केम थ्रू सोशल मीडिया। So it do create opportunities for you also, because social media is very impactful. Yet it is, I mean, I do feel for few people it's very distracting. So understanding the importance is very important. So along with management of so many things, we are doing that also. So just wanted to let the audience know about one extra key point that you have done. We have come to an end, but Shrishti, according to your experience and your understanding of SSP, I want to know that what are the mistakes, 3 to 4 mistakes you want to highlight which candidate do perform in the SSP. It could be anything, but you have observed through your own personal experience and you want to mention it. I would say, starting with, be authentic in the entire process. Don't get intimidated by people or the assessors there. They are here to assess you, so you show them what you are. Don't try to uh, imitate someone or something like that. Be authentic throughout the entire process. For SSB, ऐसे नहीं है कि you will start preparing एक महीना पहले. SSB is a personality test, so Right. you have to start preparing for it अभी से। अभी जो भी who all are going to see this, start preparing for it अभी से। You have to work on your personality, knowledge और ये सब चीजें वो तो तुम SSB से 1-1.5 महीना पहले you will work on it, you will study, you will try and improve on it. But personality is something which you cannot just change overnight. You have to work on yourself. Try Right. to get out of your comfort zone. Third, whenever any task you're approaching in an SSB, focus on that only. अगर कुछ गड़बड़ इधर उधर भी हो गया, forget it. हो गया वो हो गया, that is an uncontrollable part. Focus on the controllable ones जो आगे आने वाले हैं. So Right. PPDT हो गया, चलो अभी उसके बाद क्या, स्क्रीन इन हो गए, उसके बाद अभी साइक है तो साइक के ऊपर टैट, टैट में एक आधा किधर स्टोरी में गड़बड़ हो गया अभी वैट आने वाला है. थिंक अबाउट what you're doing in the present and not about the past. SSB के task में, ठीक Mm. है. Don't get demotivated anywhere you feel that you did not put your best foot forward. It's okay, it's okay. Always focus on the next part that is going to come and give your best there. That is one thing. And make friends. Don't get stressed. Mhm. जब SSB जा रहे हो, be fully free. Try and have conversations with people. I bet जो एसएसबी में तुम्हारा ग्रुप बनता है एंड द पीपल यू मीट देयर आर वेरी इंसाइटफुल. मतलब ऐसे लोग तुम्हें बाहर मिलेंगे ही नहीं. व्हेन यू गो देयर, यू टॉक अबाउट थिंग्स, you start sharing opinions, you start exchanging ideas, and you feel very good. So I think वो SSB का part तुम miss मत करो. Don't stay in a competitive mode. Make friendships, make connections, and yes, that is pretty much it. And last, I'll just add, enjoy the process. There's Yeah. nothing very hypothetically they're asking for. They are just looking for your true self. And if you are creative, if you are enthusiastic, if you're active in sports, you like reading, you like to be updated what's happening in the world and in your surrounding, there is not single thing they will reject you. Certain things can be avoided, but I think this is something that I wanted to add. Shrishti, thank you so much for joining me for this video. It's just not a single conversation between two people that we are sharing, but I'm sure that a lot of people will understand what exactly they can make changes in their personal life. And you have done so many things, and there are a lot of good opportunities coming on your way in the future as well. You are a hardworking person, which I understood so far. Keep doing it, and whatever pathway you choose in life, I'm sure it's just one door ahead. You will reach it and you'll achieve it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.